وہ ایک جانور جا رہا تھا، بچے اس کے پیچھے لگ گئے. غوث پاک آ رہے تھے مدرسے سے، آپ نے فرمایا میں بھی پیچھے چلنے لگ گیا. وہ بیل رک گیا، وہ جانور اس نے گردن موڑ کے کہا اے عبد القادر، اللہ نے تجھے اس لیے نہیں بنایا، اللہ نے تجھے اس لیے نہیں بنایا. جانور کو پتا ہے میرے پیچھے کون چل رہا ہے. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل صحت و سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں میٹھے میٹھے پیارے پیارے قادریوں کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری کہانیاں. ہماری جو پہلی کہانی ہے وہ ہے خواجہ غریب نواز اور اجے پال جوگی کی کہانی. کچھ لوگ اسے جے پال جوگی بھی کہتے ہیں. اس میں خواجہ غریب نواز جو ہے وہ ہیرو ہے اور ہمارے اجے پال جوگی جو ہے ولن ہے. دھیان رہے کہ یہ بریلی ووڈ کی کہانی ہے، تو اس میں گریوٹی اور لاجک ایگزسٹ نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ ان کہانیوں میں جہاز بنے ہوئے ہوتے ہیں، میرا مطلب ہوا میں اڑتے رہتے ہیں اور گریوٹی کی بالکل عزت نہیں کرتے. پھر کسی کو کبھی گریوٹی پر تھوڑا بہت ترس آ جائے تو وہ زمین پر لینڈ کر جاتا ہے. خیر، پیش ہے ہماری پہلی کہانی ہمارے پیرٹ فارم کے اونر، میرا مطلب مدنی چینل کے اونر جناب الیاس قادری صاحب کی زبانی. سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسائی جمیلہ سے لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے. وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہوئی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا. اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچ گیا. مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر، یعنی پریشانی دیکھ کر، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے. ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار یعنی سرکل کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے. اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جوں ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے. جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو یعنی استاد خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا. جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا. مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے. میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک جوتیوں کو اشارہ کیا. اشارہ پاتے ہی وہ جوتیاں بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر کے بھی اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی. ہر ضرب میں وہ بوکھلا کر نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا. تو چلیے اس سین کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مان لیتے ہیں کہ یہ ہے اس کہانی کے ولن بریلی ووڈ کے تھینوس جناب اجے پال جوگی، جو کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، گریوٹی کی بالکل عزت نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ہے اس کہانی کے ہیرو جناب خواجہ غریب نواز، جو کہ چپل پہنے ہوئے ہیں. اس کے بعد خواجہ غریب نواز اپنی چپل ہوا میں پھینکتے ہیں اور چپل ہوا میں اڑ رہی ہیں. یہاں سے ہمارے جو ولن ہیں اجے پال جوگی وہ بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں. یہ دونوں ہوا میں رک جاتے ہیں. اب آپ سوچیں گے بھائی گریوٹی کہاں گئی؟ تو گریوٹی گئی تیل لینے کے لیے. ایسی کوئی چیز بریلی ووڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتی. جیسے ہی کسی کہانی میں بابے انٹر ہوتے ہیں گریوٹی چھٹی پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ بابوں کا کام ہوتا ہے ہوا میں اڑنا اور گریوٹی کا کام ہوتا ہے نیچے کی طرف کھینچنا. اسی لیے جب بھی کسی کہانی میں بابے انٹر ہوتے ہیں بابوں سے ڈر کر گریوٹی چھٹی پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ بابوں سے گریوٹی بھی ڈرتی ہے.
खैर क्योंकि ग्रेविटी गई है छुट्टी पर तो इसलिए दोनों हवा में उड़ रहे हैं। इसके बाद ख्वाजा साहब की चप्पल यूं हवा में उड़ते 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 अजय पाल जोगी को मारती है, सिर पर मारती है और नीचे गिरा देती है। यह देखकर सबसे पहले ग्रेविटी खुश होती है कि चलो कोई तो जमीन पे आया। अब आप खुद सोचिए कि कैसी कहानियां हैं बॉलीवुड में, और आप लोग हैं कि डीसी देख रहे हैं, मार्वल देख रहे हैं, सुपरमैन देख रहे हैं, आयरन मैन देख रहे हैं। अरे भाई बॉलीवुड पे भी ध्यान दो ना यार, इसमें ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आपको हॉलीवुड की कमी महसूस ही नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे पहले बॉलीवुड पर ध्यान दीजिए। खैर अब आते हैं हम रियलिटी की तरफ। साहबा ने दीन के लिए जंगें लड़ी, साहबा ने दीन के लिए शहादतें दी, साहबा ने दीन के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन कोई एक ऐसा साहबी दिखा दो जिसने यूं तलवार फेंक के मारी और उस तलवार ने ख्वाजा गरीब नवाज की चप्पल की तरह दुश्मनों को मारा हो। या फिर कोई एक ऐसा साहबी दिखा दो जिसने चप्पल ही फेंक के मारी और उस चप्पल ने ख्वाजा गरीब नवाज की चप्पल की तरह दुश्मनों को मारा हो। या कोई ऐसा साहबी दिखा दो जो हवा में उड़ता हो। आप लोग खुद ये मानते हैं कि ये जो बाबे हैं जिनकी आप बातें कर रहे हैं ये किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सहाबी ऐसी करामातें करके नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आपके बाबे जो किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है, वो ऐसी ऐसी करामातें करके दिखा रहे हैं जो किसी सहाबी से साबित ही नहीं है। आप खुद सोचिए, जो करामात किसी सहाबी से साबित नहीं है वो करामात वो वली करके दिखा रहे हैं जो किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। जब हम इनसे वजह पूछते भाई ऐसा कैसे है, तो कहते हैं अंबिया से तो साबित है ना। अरे भाई अंबिया से तो साबित है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो अंबिया है क्या? तुम अपने बाबों को अंबिया के बराबर समझते हो? कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल गुस्ताखी है। तो भाई फिर कैसे कह सकते हो कि ये मुआजिजे जो है अंबिया के पास थे तो हमारे बाबों के पास भी ऐसी करामात होंगी? फिर ऐसा नहीं कर सकते यार। जब हम अंबिया को सहाबा से कंपेयर नहीं कर सकते तो भाई तुम अपने बाबों को अंबिया से कंपेयर कैसे कर सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह से बातें करते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, इसीलिए हमारे जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है वो भी मुर्दे जिंदा कर सकते? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंबिया को मौजिज़े अल्लाह ने दिए हैं। तुम्हारे बाबों के मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं आई है। कहानियां हो और अमीनुल कादरी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पेश है अगली कहानी अमीनुल कादरी की जुबानी। हजरत बायजीद बुस्तामी घुटने जमीन पे रख के आसमान की तरफ देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। आने वाला मुरीद आता है और आकर कहता है, ए हजरत बायजीद आप खून के आंसू रो रहे हैं, आपकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। बायजीद कहते हैं रोने की वजह यह है कि मैं सिर्फ 2 कदम में अर्श पर गया था। बायजीद बुस्तामी फरमाते 2 कदम में मैं अर्श पे गया। जब मैं अर्श पे पहुंचा तो मैंने अर्श को देखा कि वो प्यासे भेड़िए की तरह बेचैन है। जैसे जंगल में प्यासा भेड़िया होता है, उसी तरह से मैंने अर्श को बेचैन और बेकरार पाया कि वो प्यासे भेड़िए की तरह बेचैन और बेकरार है। उस वक्त मैंने पूछा, ए अर्श तेरी बेकरारी की वजह क्या है, तेरी बेचैनी की वजह क्या है, तू क्यों बेचैन और बेकरार है? तो अर्श का जवाब सुनो। अर्श कहता है, ए बायजीद बेचैनी इस बात पर है कि मैं खुदा को ढूंढ रहा हूं, मैं खुदा को तलाश रहा हूं, मैं अल्लाह को तलाश करता हूं। बायजीद कहते हैं खुदा को ढूंढते ढूंढते तो मैं यहां चला आया और तू भी उसी को ढूंढ रहा है, जबकि हमें तो पता ये दिया और रहमानो अलल अर्श इस्तवा कि रहमान ने उस्तवा किया जैसा कि उसकी शान है अर्श पर। अर्श पर उस्तवा करना तो हमें पता दे रहा है कि वो अर्श पर है जैसा कि उसकी शान है। तो जब अर्श कहता है, अर्श ने सुना कि बायजीद कहते हैं कि अल्लाह ने जवाब दिया, पता बताया और रहमान अलल अर्श इस्तवा कि रहमान ने अर्श पे उस्तवा किया जैसा कि उसकी शान है। ये पता मालूम करके हम अर्श पे आ गए कि चलो खुदा को ढूंढ लेंगे अर्श पर, खुदा को पा लेंगे अर्श पर। लेकिन जैसे मैं बेचैन हूं, अर्श तू भी बेचैन है, तू भी बेकरार है। तो अर्श कहता है अल्लाह अकबर। एक सर्द आग खींची अर्श ने और अर्श जवाब देता है, बायजीद जब तू पूछता है तो तुझे बता देते हैं कि अर्श पर उस्तवा किया जैसा कि शान है उसकी। और जब मैं बेचैन होकर पूछता हूं अल्लाह तू है कहां, ताकि मैं तुझे ढूंढ लूं, तेरा पता पालूं, तुझे तलाश कर लूं। तो बायजीद जब तुम पूछते हो तो तुम्हें अर्श का पता देता है, और जब मैं पूछता हूं कि तू है कहां, मैं तुझे कहां पाऊं, तो अर्श को यूं कहता है अगर मुझे पाना है तो
बायजीद के दिल में चला जा तो मुझे वही पर पालेगा। पहले तुम मुझे ये बात बताओ, तुम क्या चाकू पे बैठे हुए होते हो? जब देखो चीखते चिल्लाते रहते हो, जब देखो चीखते चिल्लाते रहते हो। ऐसा लगता है इसका कोई मुरीद इसके बैठने से पहले इसकी कुर्सी पर खड़ा चाकू रख देता है और ये उसी चाकू पर बैठ जाता है, तभी इतना चीखता चिल्लाता है। अरे क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो यार? कहानी तो तुम्हें सुनानी है तो आराम से सुनाओ ना। कौन सा तुम्हारा चीखने चिल्लाने से बाबे उड़ने लग जाएंगे? कौन सा तुम्हारा चीखने चिल्लाने से मुर्दे जिंदा होने लग जाएंगे? कौन सा तुम्हारा चीखने चिल्लाने से सच में 2 कदम में कोई अर्श पर पहुंच जाएगा? कहानियां ही तो हैं यार, आराम से सुनाओ। अब आते हैं तुम्हारी कहानी की तरफ। मैं कहानी का जवाब कहानी से नहीं दूंगा, हदीस से दूंगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1520। बनु सलमा कबीला जो था वो मस्जिद नबवी के करीब शिफ्ट होना चाहते थे, मुंतकिल होना चाहते थे, क्योंकि मस्जिद नबवी उनकी रिहाइश से थोड़ी दूरी पर थी, इसलिए उनको आने जाने में वक्त लगता था। जैसे ही ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनु सलमा, आप शिफ्ट ना हो, आप मुंतकिल ना हो, क्योंकि आपके कदम गिने जाते हैं, यानी जितना ज्यादा आप मस्जिद के लिए चलते हैं उतना ही ज्यादा आपको सवाब मिलता है। अब मुझे एक बात बताइए कि बनु सलमा कबीला शिफ्ट क्यों होना चाहते थे, मुंतकिल क्यों होना चाहते थे? सिंपल सी बात थी कि मस्जिद नबवी दूर थी, चलना ज्यादा पड़ता था और आने जाने में वक्त लगता था। लेकिन एक मिनट, बायजीद बस्तामी जो किसी सहाबी की जूते की धूल के बराबर भी नहीं है, वो तो 2 कदम में अर्श पे जा रहे हैं। यहां पर पूरे का पूरा सहाबा का कबीला शिफ्ट होना चाहता है मस्जिद नबवी के करीब, क्योंकि मस्जिद नबवी दूर है और चलना ज्यादा पड़ता है। वो आधे कदम में या 1 कदम में डायरेक्ट मस्जिद नबवी क्यों नहीं पहुंच गए? नहीं, उनको शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? वो तो सहाबा थे ना, उनके पास तो बायजीद बस्तामी से बड़ी बड़ी करामात होनी चाहिए। वो शिफ्ट हो रहे हैं और बायजीद बस्तामी 2 कदम में अर्श पे जा रहे हैं। वो बायजीद बस्तामी जो किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। सहाबा घोड़ों पे सवार होकर चल रहे हैं, सहाबा ऊंट पे सवार होकर चल रहे हैं, सहाबा नाव में सवार होकर चल रहे हैं, सहाबा पैदल चल रहे हैं। लेकिन 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 वो बाबे जो किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है, वो हवा में उड़ रहे हैं, वो पानी पे चल रहे हैं, वो 2 कदम में अर्श पे जा रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए, क्या ये मानने वाली बात है? खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।